access to. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एट कैफे। आई एम योर होस्ट कनिष्क पांडे एंड जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम एक बहुत ही रोमांचक गेस्ट को और जिनको लेकर आते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे एंड वी टॉक टू देम अबाउट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। ऐसे ही एक गेस्ट को हम आज अपने साथ लेकर आए हैं जो कि उतनी ही डायनामिक है और शायद इतनी ज़्यादा कि हम अपने वर्ड्स में तो उनको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। So I would like to give it to Dr. Shama Swarnkar. She's the co-founder of eGurukul, excellence of training, and they are basically an e-tutoring platform who've been doing e-tutoring before it was actually officially introduced to the country. And we would like to know more about this from her own mouth. So I give it to you, Dr. Shama. I hope I'm spelling your name right because कभी हो जाती है spelling. It's okay. It is Dr. Chama. All right. Chama. All right. So my name, as you have already introduced, Dr. Shama, and yes, I am a co-founder of an online tutoring company, which is with a tagline eGurukul, Excellence of Learning. Excellence of Learning. Yes. So it is an edtech company which is catering to the education field, obviously, and teaching to and giving assistance to the teachers as well as the student in their learning to improve the learning skills. And obviously we are edtech company, we are using the technology for the education. So yeah, you are very truly said that it was not introduced previously before COVID. Now after COVID, everybody is moving towards the online teaching and online tutoring. But we are catering about 8+ years, but this online platform is just now introduced during the COVID time in India. So we basically want to emphasize more for India because we are Indians. Obviously, we want to get introduced to the India, and as the foreign countries have already given a very broad sense of teaching, learning. So we want to get introduced in the India as well. मैम, ऑनलाइन ट्यूटरिंग जो हम वर्ड समझते हैं, हम वही समझ रहे हैं कि जो नॉर्मल ट्यूटरिंग होती है उसको आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. हाउ इज इट डिफरेंट एंड हाउ डू यू फील कि it helps, it is better than the conventional tutoring that is happening in the industry? See, there are two teaching skills. That is traditional, which we use a blackboard, and the blackboard now come to the digital platform. Yeah. Okay, so digitally we are using whiteboard. Okay. What you can say in a Zoom, it is there digital in a whiteboard, yeah. Yes, digital whiteboard. So how it is more important and more useful because now every generation is having the new, like हम बोलते हैं कि आज अब बच्चा मोबाइल लेके पैदा होगा, तो मोबाइल लेके पैदा नहीं होगा, वो टेक्नोलॉजी लेकर पैदा होगा. तो टेक्नोलॉजी कैसे आती है? जब हम उसको मोबाइल अभी से हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उस चीज़ का एजुकेशन में इंट्रोडक्शन जब होता है तो हम उसको ऑनलाइन टीचिंग बोल देते हैं. तो इट इज़ नॉट अ ब्लैक बोर्ड, इट इज़ अ वाइट बोर्ड. There is no difference in both the teaching. In fact, I will add one more important point कि online teaching में आप उनको updated knowledge देते हैं, आप उनको ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं देते. जो आपकी बुक में लिखा है वो स्कूल्स या अकेडमीज में क्या होता है कि हम जो वही बताते हैं जो बुक में दिया है या स्टडी मटेरियल्स में दिया है, बट ऑनलाइन टीचिंग में हम उनको इमीडिएटली गूगल करके कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम उनको बता सकते हैं. सो दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग. तो while so like you said कि आप updated information दे सकते हैं, तो is it also like कि so that updated information is also in sync with the curriculum that is given to them at schools? Yes, obviously. कैरिकुलम कहाँ से आया है? कैरिकुलम्स आपके आए हैं जो आपकी बुक्स में दिया है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैरिकुलम. अब उसका अपडेशन आप ऑनलाइन से निकाल के दे रहे हैं, दैट इज ऑब्वियसली एन ऑनलाइन टीचिंग. Online teaching is for me
it is a very good thing. Me representing an edtech myself, the technology part of edtech in fact, तो मेरे से कोई पूछेगा कि ऑनलाइन टीचिंग अच्छी है, मैं तो हमेशा हाँ बोलूँगा उस चीज़ को। 2020 में NEP आया, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और वो पॉलिसी ने सारी चीज़ें चेंज कर दी एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए। हर चीज़ टेक्निकल एस्पेक्ट से देखी जाने लगी। इवन दी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हैं आज की डेट में चल रही हैं, उनको भी टेक्नोलॉजी वाइज एम्फोसाइज किया जा रहा है कि इम्प्रूव करा जाए। आप तो उससे भी पहले से टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं और उस एस्पेक्ट को टेक्नोलॉजी से गेटर कर रहे हैं जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था शायद। तो इस तरह पर्टिकुलर इस टेक्नोलॉजी आप, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें, तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि टेक्नोलॉजी आपके लिए अच्छी है कि बुरी है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि वो आपके लिए अच्छी है। मगर कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है टेक्नोलॉजी का जो आपको बहुत अच्छा लगता है या आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा है थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ ई-ट्यूटरिंग और जितने भी आपके एजुकेशन इंटरेक्शंस रहे हैं? आई लाइक व्हेन हम किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें आप 3D मॉड्यूलेशन दे सकते हैं, वीडियोस दे सकते हैं, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अपडेटेड रिसर्च दे सकते हैं, इफ इट इज अ काइंड ऑफ एन रिसर्च टॉपिक तो हम उसको दे सकते हैं। और जब हम कोई प्रोसेस लाइक इफ बिकॉज आई एम अ साइंस टीचर, सो इफ आई से कि किसी बॉडी का आपको फंक्शन दिखाना है, आप यदि उसको 3D मॉडल में बताएंगे कि ब्लड यहाँ से हार्ट से निकल के कैसे वो जाता है थ्रू आउट बॉडी, ऑक्सीजन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, आप उसको 3D मॉडल में या किसी वीडियो में बताएंगे तो बच्चा दिमाग में, वो बोलते हैं ना, देख कर बच्चे ज्यादा सीखते हैं अपार्ट फ्रॉम वो सुनकर। सुनने से तो सीखेंगे ही बच्चे, मगर देख के जब आप हम दिखाएंगे उनको तो वो ज्यादा अच्छे से ग्रैप्स करते हैं। मल्टी सेंसरी, हम उसमें पूरे सेंस ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं। जैसे हम स्कूल में हम ट्रेडिशनल टीचिंग करते थे तो उसमें क्या होता था कि बच्चा देख रहा है या लिख रहा है, तो यहाँ पे 2 सेंस ऑर्गन आपके यूज हो रहे हैं। मगर जब हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो बच्चे का ब्रेन भी यूज हो रहा है, आईज भी यूज हो रही है, बच्चा इंटरेक्शन इसका हो रहा है, बच्चा लिख भी रहा है, बच्चे का माइंड तो वर्क कर ही रहा है बिकॉज ऑल द सेंस ऑर्गन्स आर वर्किंग। सो इट इज गुड, दैट्स अ गुड थिंग। Even in the NEP also they have said the same thing. Yes, and that's why I said कि NEP ने अभी जो रेगुलेशंस दिए हैं वो सिर्फ स्कूल एजुकेशन की तरफ दिए है, जहाँ पे उसने करिकुलम फ्रेमवर्क्स दिए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करा, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड आउटकम बेस्ड लर्निंग, बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमें भी समझने को मिले। बट ट्यूटरिंग वाला जो पार्ट था वो NEP से अभी बचा हुआ है, टेक्निकली स्पीकिंग। ऑल्दो वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, अब हम देख रहे हैं काफी अच्छे से यूज हो रही है। ICT is introduced in NEP. Yes. तो अब वही उन सब चीजों की आप जो इतने वक्त से कर रहे हैं, दैट इज आई एम श्योर अब आप प्रोफिशिएंट हो गए उन सब चीजों में। Obviously. आपको गाइडलाइंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं, अब यू आर ऑलरेडी डूइंग मे बी मोर देन व्हाट इज मेंशन्ड इन दोज गाइडलाइंस प्रोबेबली। इतने सालों से आप ट्यूटरिंग कर रहे हैं, अडॉप्शन आपको सिर्फ इंडिया से मिला है या इंडिया के बाहर भी आपको अडॉप्शन मिला है इन सब चीजों? आई स्टार्टेड द थिंग फॉर अब्रॉड कंट्रीज। ओके, ठीक है, हम बेसिकली अब्रॉड कंट्रीज को ही डील करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि जब कोविड आया तब हमने इंडिया में स्टार्ट किया है। अब इंडिया के लोगों को पता चल रहा है कि भाई ऑनलाइन टीचिंग भी होती है, या कुछ जो बहुत एडवांस पेरेंट्स नॉलेजेबल पर्सन्स है वो, उनको पता था कि हाँ बाहर होता है, यहाँ पे भी किया जा सकता है, इसलिए होता था। जैसे जब बाइजू इंट्रोड्यूस हुआ था या फिजिक्स वाला अभी 4 साल 8 साल से आ रहा है, तो इट इज गुड, it is a good thing. I will appreciate all these kind of an entrepreneurship which is introduced. और जहाँ तक रही teaching और tutoring, teaching is a word which we use in the schools. ठीक है, ट्यूटरिंग हम उसको बोल सकते हैं जो हम टीचर्स पढ़ाते हैं बाहर, ट्यूशंस जिसको हम बोलते हैं। मगर जब आप ट्यूशंस बच्चे को क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको कहीं वो ब्लैक होल पे होता है कि कोई कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझ में आया तो रिवाइज हो जाएगा, तो वो उसके लिए होता है। तो हम वो चीज भी
ओवरकम करना चाहते हैं कि उसमें भी उसको मैं तो बोलती हूँ कि भाई किसी भी बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, हम इतने अच्छे से स्कूल एजुकेशन कर दे। तो स्कूल एजुकेशन में ऑलरेडी एनईपी इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो वहाँ पे स्कूल एजुकेशन में यदि इम्प्रूवमेंट हो रहा है एनईपी से, तो ऑब्वियसली फिर हमें हमारी टीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि ऑनलाइन डिजिटल 100% डिजिटल स्कूल्स आए हैं इंडिया के अंदर। कुछ स्कूल्स के साथ मेरे को भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला और काफ़ी कुछ सीखा मैं उनसे कि किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें, किस तरीके से वो फिज़िकल इंटरेक्शन जो है बच्चों का, जो कि बहुत स्ट्रेस किया जाता है करिकुलम में, स्पेशली फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स, किस तरीके से वो उसको भी मैनेज कर रहे हैं अपने डिजिटल इकोसिस्टम में, और काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं। आप तो काफ़ी वक्त से दूसरी कंट्रीज़ के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो आउटकम बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है और जितने भी फ्रेमवर्क्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे हैं, जिसकी वजह से अब स्कूल्स में इम्प्लीमेंट तो हो ही रहे हैं और आने वाले वक्त में दूसरे एजुकेशनल मीडियाज़ में भी इंट्रोड्यूस होंगे, सारे एजुकेशन मीडियाज़ में इनफैक्ट। आपको ऐसा मतलब कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद क्या हम एट पार आ पाएंगे उस लेवल के एजुकेशन से? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, पर जनरल आइडिया ये दिया जाता है कि बाहर भेज देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, राइट? तो आप इंट्रोड्यूस्ड ऑलरेडी, यू बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द आइडिया ऑफ एजुकेशन बाहर, है ना, दूसरे कंट्रीज़ के लिए। क्या आपको लगता है कि आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दीज टेक्नोलॉजी, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं और जो भी रैपिड चेंजेस आए हैं पिछले 2 सालों में, उसके बाद क्या हम एट पार आ पाएंगे उस एजुकेशन लेवल के साथ, उस माइंडसेट के साथ? बेसिकली बिल्कुल आ पाएंगे, बिकॉज बाहर हम बच्चों को क्यों भेजते हैं? वो एक्सपोजर के लिए भेजते हैं, हम पढ़ने के लिए नहीं भेजते। पढ़ाई, I'm telling you, I'm an online tutor and I already deal with multinational companies and even the countries also. तो वो चाहते हैं इंडियन टीचर, यू नो, इंडियन टीचर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। और जब हम बाहर बच्चों को भेजने की बात करते हैं तो क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि उनको हम एक्सपोजर देना चाहते हैं। यहाँ पे बच्चों को एक्सपोजर इंफॉर्मेशन में नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम बच्चों को बाहर भेजते हैं कि बच्चों को एक्सपोज मिलेगा, टेक्नोलॉजी सीखेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी। आपने सुना होगा जब बच्चे भेजते हैं पेरेंट्स, टेक्नोलॉजी सीखेंगे। टेक्नोलॉजी जब ऑलरेडी एनईपी में और एनसीएफ में इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया में, तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो आएगा। सही बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि माइंडसेट, जैसे मैंने भी अभी पहले भी बोला कि माइंडसेट बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडियन टीचर की रिक्वायरमेंट बाहर ज़्यादा है तो दैट मीन्स वो इंडियन टीचर इंडिया में ज़्यादा अच्छे से इंडियन बच्चों को पढ़ा सकता है और इंटरेक्ट करके उनको सही अच्छी ज़्यादा बढ़िया एजुकेशन इम्पार्ट कर सकता है। एक्सपोजर, यू आर राइट अबाउट द एक्सपोजर, एंड दैट पार्ट इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग डे ऑन डे। हम देख रहे हैं कई तरीके की वोकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं स्कूल्स में। एनईपी में भी स्पोर्ट्स को और दूसरे वोकेशनल कोर्सेज़ को प्रोमिनेंट बनाने के लिए और बहुत ही स्पेसिफिक बनाने के लिए भी डिमांड आई है। गाइडलाइंस, काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस हैं उसके अराउंड, ऑल्दो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट क्योंकि आपने एक्सपोजर की बात करी तो मुझे उसका ख्याल आ गया। आपने कहा कि इंडियन टीचर्स की बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड है। दैट कम्स टू द क्वेश्चन कि क्या जिन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम बच्चों को एक बहुत अच्छा मतलब एजुकेशन सिस्टम और एक एजुकेशनल करिकुलम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्या that same thing be used to impart the education, right professional training to the teachers as well? Yes, I just want to mention that I am attached with CED, that is Continuation Education Development. Okay. We use giving training to the teachers. We are giving, because just now it is NEP is introduced, so we are just giving them what is NEP, what kind of a modification NEP want in the teaching, what are the different modes of teaching. There are n number of
trainers are there who are training. Still today also at 5 o'clock we have the training session. So we are taking the teachers across the globe. So they are trainers and they are the master trainers also. They are taking the classes, basically webinars and all that, which is only to train them. And when we are training them, then obviously we are giving them on technology, motive, and we are all over apart. We are motivating the teacher to improve themselves more. Yes. So ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल हमने करिकुलम को बहुत एम्फेसाइज करा, हमने बच्चों पे बहुत एम्फेसाइज किया, बट समहाउ हमारे एजुकेशन सिस्टम पे टीचर्स पे कम एम्फेसाइज किया जाता है फॉर देयर डेवलपमेंट. पिछले 2-3 सालों में बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हमें भी काफ़ी दिक्कत महसूस हुई जब हमने चाहा कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन दे टीचर्स के थ्रू. टीचर्स सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी आस्क अ टीचर कि आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बच्चे को पढ़ाएं कुछ कोई भी एजुकेशनल कोई भी कोर्स या कोई भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो सबसे पहले उनका एप्रीहेंशन सामने आता है इंस्टेड ऑफ द क्यूरियोसिटी, राइट, विच इज समथिंग जो कि हम भी चौंकते हैं उस चीज़ को देख के, क्योंकि हम तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाने के लिए बैठे हुए हैं. तो कई फैकल्टीज़ के साथ हमें ये एप्रीहेंशन मिली है. What you are doing with teacher training with your global exposure, I believe you'll be able to drive that professional attitude within the faculty ecosystem, and I personally feel that it is required. Not saying कि हमारे teachers किसी भी तरीके से incompetent हैं, शायद बहुत ही amazing teachers हैं हमारे पास, इसलिए बाहर ज़्यादा डिमांड है उनकी. But yes, with the right training about the exposure outside, with the right exposure, I believe we can turn things around and make it a global concept for everyone. और वो भी इंडिया से निकला हुआ, ऐसा नहीं कि बाहर से आया हुआ इंडिया में, इंडिया से गया हुआ बाहर, इस तरीके से. So yeah, that is a good thing that you're doing. हम एक बहुत एक जो नॉर्मल हम बेसिक एजुकेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो तो करते ही हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, बट एक इन पास्ट 1 year और 1.5 year हमने पर्सनली एक मुद्दा उठाया जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी. एंड फाइनेंशियल लिटरेसी विद इन द स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं कि एक ग्रास रूट लेवल से अगर बच्चे को फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से इनबिल्ट होगी उसके अंदर. हमें मुझे याद है कि जब हमें कोई पैसे देता था, कोई जाते हुए कोई रिश्तेदार पैसे देकर जाता था, तो हम वो पैसे घर पे दे देते थे, और फिर घर वाले हमें उसके इंटर्न थोड़ा सा चेंज दे देते थे, विच वी यूज टू स्पेंड ऑन मे बी सम सॉर्ट ऑफ कैंडीज ऑन स्टफ लाइक दैट. कभी हमसे उसके बारे में नहीं पूछा गया आपने कहाँ खर्च किया, रैंडमली पूछ लिया, हाँ अच्छा तुमने खर्च कर दिया, हमने बता दिया कि हमने ऐसे कुछ ये कर लिया वो कर लिया, या कभी घर वालों के साथ चले गए और खरीद के ले आए. बट उसके बियॉन्ड हमारा कोई फाइनेंशियल इंटरेक्शन नहीं रहा पैसों के साथ. आज की डेट में शायद बच्चे ज़्यादा एडवांस हैं, बच्चों को पॉकेट मनी दिया जाता है, और बड़े अच्छी पॉकेट मनी मिलती है, और वो बच्चे जाते हैं, दे स्पेंड ऑन थिंग्स, और चीज़ें सस्ती नहीं है, महंगी हैं, तो दे आर गेटिंग गुड मनी, राइट. और पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट स्कूल से इंट्रोड्यूस हो गया. बट समहाउ आई फील कि उस पैसे के साथ उसकी वैल्यू नहीं समझाई जा रही. एग्जैक्टली. क्या है आपका व्यू इस चीज पे? बीइंग एन ऑनलाइन ट्यूटर, हाउ डू यू फील? Not only being an online tutor, I'm a mother of a child also. Yes. तो not to forget that. तो मैं यही बोलूँगी कि मेरा बेटा तो अभी 6th-7th में he is going about, तो I'm not giving. उसको जो चाहिए, mother and father both are earning, you can take. But we have to mention कि भाई ये चीज़ महंगी है. हमें बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि ये जो आप खर्च कर रहे हैं पैसे, ये हम बहुत मेहनत करके कमा रहे हैं. The value of money. वैल्यू ऑफ मनी. और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे को लिटरेसी इज इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इज मोर इम्पोर्टेंट. वी हैव टू मेक देम कि मनी इज इम्पोर्टेंट एंड यू हैव टू earn it with a great effort, labor.
मैं कभी नहीं बोलूंगी कि किसी भी बच्चे को कि आप लेबर के बच्चे को देख के, क्योंकि लेबर का बच्चा भी मेहनत कर रहा है, लेबर मेहनत कर रहा है इसलिए तो लेबर के बच्चे को खाना मिल रहा है। Yes. और हम यदि एजुकेटर्स मेहनत कर रहे हैं तो हमारे बच्चे को भी खाना उसी वजह से मिल रहा है क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। यस यस यस, यू राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कमिंग टू द पॉइंट कि मेरे हिसाब से इन स्कूल तो करिकुलम में होना चाहिए financial literacy or the introduction to money or the value of money or the importance of money. These concepts should be there in the in-school program. But out-school program like yours, क्या आप सोचते हैं कि उसके अंदर भी इंट्रोड्यूस करा जा सकता है फाइनेंशियल लिटरेसी एट सम पॉइंट? यस, कर सकते हैं, बिकॉज जब हम क्लासेस लेते, देखिए हम ठीक है हम ऑनलाइन बोलते हैं तो हम तो सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे हैं, बट जब हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में पढ़ने की बात होती है, क्लासेस में होती है, तो बहुत सारे क्लासेस आपको याद होगा पहले वो ये होता था, होम साइंस होती थी, राइट? उसमें हम बच्चों को सिखाते थे। आज आप बच्चे को किसी को बोल दीजिए कि बेटा आपका मैगी बनाना है, तो शी विल और ही विल आस्क कि मम्मा आप बना दो। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को इतना टेरर दे देते हैं कि बेटा गैस नहीं ऑन करना है, माइक्रोवेव नहीं यूज करने देते। आई एम जस्ट against all these, let him do that. थोड़ा सा चोट लगेगा ना, हम पेरेंट्स बैठे हैं उसको ठीक करने के लिए, हम हैं, मतलब you have to an overview। देखो हर चीज का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होता है। हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करें तो यदि आप मॉनिटर्ड नहीं है बच्चे के सिस्टम में, तो बच्चा क्या कर रहा है ड्यूरिंग द सेशन यू डोंट नो। ऐसा हुआ है कोविड में, इसीलिए कई पेरेंट्स अगेंस्ट है ऑनलाइन टीचिंग के। स्कूल्स भी कई बार टीचर्स बोलते हैं अरे बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे ध्यान नहीं देते, बच्चे, भाई वो जब ऑनलाइन हो रहा है, यदि बच्चा आपके घर पर है तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। और यदि बच्चा स्कूल में कोई ऑनलाइन कर रहा है तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्कूल कि चेक व्हाट काइंड ऑफ एन वेबसाइट इज विजिटेड। राइट, प्रॉक्टरिंग तो जरूरत है, ऑब्वियसली, हर जगह ऑब्वियसली, तो वो तो इम्पोर्टेंट है। और मनी कंसर्न, यदि बच्चा सही डायरेक्शन में है तो मनी वो सही यूज करेगा ही। यदि उसको इम्पोर्टेंस पता है लाइफ की, टाइम की, मनी की, तो ऑब्वियसली बच्चा तो सही हो जाएगा। स्पॉट ऑन, आपने बहुत सही चीज़ बताई आज, होम साइंस। अब मैं इसके बारे में और रिसर्च करूँगा, मे बी दिस कॉन्सेप्ट कैन बी आवर नेक्स्ट एपिसोड। But thank you very much, Dr. Sharma, and for giving your time and your experiences. I believe जो आप कर रहे हैं that will bring out a lot of changes in the industry altogether. I hope to the next time we meet, I hope आप कुछ और अनोखा और कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने लेकर आए जिसको हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। एंड एक बहुत छोटा सा ट्रेडिशन है हमारा जिसमें हम मग साइन करते हैं एंड वी कीप इट एज अ मेमेंटो विद अस एंड फॉर यू। तो दिस इज यू कैन साइन दिस। एक और for us, for you. Wow. Thank you very much, ma'am. My pleasure. This was a good session. This was a good talk. We learnt a lot from you, and our viewers learnt a lot from you. And I thank you all for taking time to watch us, and next time we'll bring in another guest as vibrant as Dr. Sharma, and we'll talk about a different topic. Until then, thank you. Bye bye. Thank you.